हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप NCERT इंग्लिश को इंटरेस्टिंग तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। आज इस वीडियो में हम हनीसकल के चैप्टर फर्स्ट हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Question 1. What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? मतलब पैट्रिक को क्या लगा कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी? और रियल में वह क्या था? Patrick thought his cat was playing with a little doll. However, it was actually a tiny man, dressed in an old-fashioned wool shirt, breeches, and a tall hat like a witch's. मतलब पैट्रिक को लगा कि उसकी बिल्ली एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही थी, लेकिन एक्चुअली में वह एक नन्हा आदमी था जिसने ऊनी कमीज, पुराने स्टाइल की पतलून और एक लंबी टोपी पहनी थी। क्वेश्चन 2. Why did the little man grant Patrick a wish? मतलब उस नन्हे आदमी ने पैट्रिक को एक विश क्यों दी? The little man granted Patrick a wish because he was in danger and needed to be saved from the cat. In exchange for his rescue, he promised to fulfill one wish for Patrick. मतलब उस नन्हे आदमी ने पैट्रिक को एक विश इसलिए दी क्योंकि वह खतरे में था और उसे बिल्ली से बचाए जाने की जरूरत थी। बदले में उसने वादा किया कि वह पैट्रिक की एक विश पूरी करेगा। Question 3. What was Patrick's wish? मतलब पैट्रिक की विश क्या थी? Patrick's wish was for the little man to do all of his homework until the end of the semester, which was 35 days. He hoped that if the little man did a good job, he could even get ace in his studies. पैट्रिक ने नन्हे आदमी से अपना पूरा होमवर्क करने की विश की, जो पूरे 35 दिनों तक चलता। उसे उम्मीद थी कि अगर नन्हा आदमी अच्छा काम करेगा तो उसे ए ग्रेड भी मिल सकता है। Question 4. In what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? मतलब किस किस विषय में नन्हे आदमी को पैट्रिक के होमवर्क के लिए मदद की जरूरत थी? The little man needed help in English, mathematics, and history to do Patrick's homework. In English, he struggled with words and needed a dictionary to understand and pronounce them. In mathematics, he didn't know times tables, addition, subtraction, division, or fractions, so Patrick had to guide him. In history, he was completely clueless since elves had no knowledge of human history, so he needed books and Patrick's help to read and understand them. मतलब नन्हे आदमी को पैट्रिक के होमवर्क में इंग्लिश, मैथ और हिस्ट्री में हेल्प की जरूरत थी। इंग्लिश में उसे वर्ड्स को समझने और सही प्रोनाउंस करने के लिए डिक्शनरी की जरूरत पड़ी। मैथमेटिक्स में वह टाइम्स टेबल्स, एडिशन, डिवीजन और फ्रैक्शन नहीं जानता था, इसलिए पैट्रिक को उसे समझाना पड़ा। हिस्ट्री में वह बिल्कुल अनजान था क्योंकि एल्व्स को ह्यूमन हिस्ट्री की नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसे बुक्स और पैट्रिक की मदद की जरूरत पड़ी। Question 5. How did Patrick help him? मतलब पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की? Patrick helped the little elf by working harder than ever. He stayed up late at night, helped the elf with reading, math, and history, and even went to the library to get books. As a result, he became tired and weary, going to school with puffed and bleary eyes. पैट्रिक ने नन्हे आदमी की मदद करने के लिए पहले से भी ज्यादा मेहनत की। वह देर रात तक जागता, इंग्लिश, मैथ और हिस्ट्री में उसकी मदद करता और यहाँ तक कि किताबें लेने के लिए लाइब्रेरी भी जाता, जिसके कारण वह बहुत थक जाता और स्कूल में सूजी हुई और थकी हुई आंखों के साथ जाता। Question 6. Who do you think did Patrick's homework, the little man or Patrick himself? Give reasons for your answer. पैट्रिक का होमवर्क असल में किसने किया?
नन्हे आदमी ने या खुद पैट्रिक ने? Patrick himself did his homework, even though he believed the little man was doing it. Reasons: 1. The elf didn't know many subjects. He constantly asked for help with English, math, and history. Patrick had to find meanings of words, explain math concepts, and get books for history. 2. Patrick worked harder than ever. He stayed up late, studied regularly, and put in effort to assist the elf. 3. He improved and got A's since he actively engaged in learning. His understanding and performance improved. 4. His personality changed. Patrick became responsible, started doing his chores, and had a positive attitude, showing his transformation through hard work. मतलब पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क किया, भले ही उसे लगा कि नन्हा आदमी कर रहा था. रीजंस: नन्हे आदमी को कई सब्जेक्ट्स नहीं आते थे. वह लगातार इंग्लिश, मैथ और हिस्ट्री में मदद मांगता रहा. पैट्रिक को वर्ड्स के मीनिंग ढूंढने, मैथ के कंसेप्ट समझाने और हिस्ट्री की बुक्स लाने की जरूरत पड़ी. पैट्रिक ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की. वह देर रात तक जागता, रेगुलरली पढ़ाई करता और नन्हे आदमी की मदद करता. उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ और उसे ए ग्रेड मिले क्योंकि वह खुद पढ़ाई में लगा रहा, जिससे उसकी अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस बेहतर हुए. उसकी पर्सनालिटी चेंज हुई. पैट्रिक रिस्पॉन्सिबल बन गया, अपने काम खुद करने लगा और उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया, जो उसकी मेहनत का नतीजा था. Thanks for watching. If you found this video helpful, like, share, and subscribe for more exciting lessons.